السلام علیکم. جمال صدیقی, DTR شکاگو. اکثر سننے میں آیا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ دیار غیر میں رہنے والے ہم جیسے پردیسیوں سے یہ سننا نہیں چاہتے کہ پاکستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے یا پاکستان کے حالات کیا ہیں. ہم لوگ جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں اکثر ہم سیاست کے اوپر, پاکستان کی سیاست پہ اور پاکستان کے حالات پر بات کرتے ہیں تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم چونکہ باہر رہتے ہیں تو ہمیں پاکستان کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. وجہ سے میں بھی نہ واقف ہوں, کیوں ایسا ہونا چاہیے مجھے نہیں معلوم. جبکہ سوچنا یہ چاہیے ان لوگوں کو کہ جو شخص کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے, کسی زمین پر پیدا ہوتا ہے, وہاں پہ ہی پلتا بڑھتا ہے, تعلیم حاصل کرتا ہے, ایک زندگی کا ایک بڑا حصہ وہاں گزارتا ہے, تو وہ دنیا میں کہیں بھی چلا جائے اسے اپنی محبت زمین سے محبت ہوتی ہے, اسے اپنے ملک سے, اپنے ملک کے رہنے والوں سے محبت ہوتی ہے. یہ ایک فطری عمل ہے. تو مقصد پتہ نہیں کیوں لوگ اعتراض کرتے ہیں, سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. جبکہ ہم لوگ جو دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں, مثلاً امریکہ میں جو لوگ رہ رہے ہیں, ان میں سے ہمارے ایسے لوگ بھی ہیں جو پاکستان کے لوگ جو بہت زیادہ امیر ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت زیادہ امیر نہیں, معمولی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن پریشان کوئی بھی نہیں ہے. کسی کو نہ مہنگائی کی پرابلم ہے, نہ کوئی جاب کی پرابلم ہے, کسی بھی چیز کی پرابلم نہیں ہے, نہ تعلیم کی نہ کسی بھی چیز کی. اور بے شمار ایسے پاکستانی ہیں جو پاکستان کی نہ خبریں سنتے ہیں, نہ پاکستان کی خبریں سنتے ہیں, نہ ان کے حالات سے ان کو کوئی دلچسپی ہے. ان کو پاکستان سے کوئی محبت نہیں ہے, پاکستان چھوڑ کر آ گئے ہیں تو پاکستان کو بھول گئے. لیکن سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو ہم اپنے ملک کو, اپنی زمین کو, اپنے لوگوں کو کبھی نہیں بھول سکتے. ان کی تکلیف ہمیں اپنی تکلیف محسوس ہوتی ہے, اور پاکستان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے, اتنا ہی جتنا وہاں رہنے والوں کو. اب بات یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت آئی, PTI. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ عمران خان ایک مخلص شخص ہے, عمران خان ایک اچھا ایماندار آدمی ہے, لیکن اس کی پارٹی میں جو لوگ ہیں پرانے سیاستدان, کچھ پرانے سیاستدان جو ٹھیک نہیں ہیں, میں اس بات کو مانتا ہوں. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ایک حقیقت رکھتی ہے کہ ان لوگوں کے بغیر عمران خان کو حکومت میں آنا بہت مشکل تھا. وہ اس کی مجبوری تھی, وہ آ گیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے اور اس کے ہاتھ میں تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے, وہ حکومت تھوڑی چلا رہا ہے. حکومت تو فوج کے ہاتھ میں ہے. ابھی PDM کا جو جلسے ہو رہے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اور کئی مرتبہ میں نے اسمبلی کے اجلاس میں بھی سنا کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ ایک ناتجربہ کار ہے, وہ غلط فیصلے کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو اگر ایک طرف اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ ہے, حکومت فوج کے ہاتھ میں ہے, تو پھر وہ فیصلے کیسے کر رہا ہے؟ پھر اس کے تجربے کا کیا فائدہ؟ تجربہ تو فوج کو ہونا چاہیے, کیونکہ فوج تو 73 سال سے ہر حکومت کے ساتھ ہے. تو بہرحال ایک علیحدہ موضوع ہے. ابھی PDM کا اتحاد ہوا ہے. ہم نے بھٹو کی حکومت بھی دیکھی, ہم نے بے نظیر بھٹو کی حکومت دیکھی, ہم نے نواز شریف کی حکومت دیکھی, زرداری صدر بنے, ہم نے وہ بھی دور دیکھا. اور تب تقریباً تمام لوگ واقف ہیں کہ ان ادوار میں کیا کیا ہوا. جب بھی پیپلز پارٹی حکومت میں رہی, نون لیگ نے اس کے خلاف بھرپور مہم چلائی, ان کو چور اچکے, ان کو کراپ, پتہ نہیں کیا کیا نام دیے. تو دو میں سے ایک بات ہے. اور آج وہ نون لیگ والے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر
जिए भुट्टो के नारे लगा रहे हैं, भुट्टो जिंदा है, और पीपल्स पार्टी के जरदारी की भी तारीफ हो रही, सबकी तारीफें हो रही, बेनज़ीर की भी तारीफें हो रही। या तो उस वक्त झूठ बोल रहे थे या इस वक्त झूठ बोल रहे हैं, दो में से एक बात होनी चाहिए लाजमी। इनको ये कहना चाहिए कि हमने जो कुछ पहले कहा वो सब झूठ था, या फिर आज जो कुछ कह रहे हैं वो झूठ है। दो में से एक बात तो होना चाहिए ना। तो अब जो ये इत्तेहाद हुआ है, ऐसा एक इत्तेहाद हमने पहले भी देखा था। भुट्टो के ज़माने में भुट्टो को हटाने के लिए 9 सितारे जमा हुए थे। इनमें से कुछ लोग तो उन्हीं की औलादों में से हैं, और उसके बाद जब वो इत्तेहाद ख़त्म हुआ तो फिर एक दूसरे के दुश्मन हो गए। अब अगर आज जो ये इत्तेहाद हुआ है पीडीएम का, तो क्या आप ये समझते हैं कि लोग इन पर भरोसा कर रहे हैं? क्या आप ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, ये जो कुछ कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर इनकी तहरीक से अगर पीटीआई की हुकूमत चली जाती है तो उसके बाद के हालात क्या होंगे? फ़र्ज़ करें इलेक्शन होते, तो क्या इलेक्शन में नून लीग के जलसे में आसिफा भुट्टो, बिलावल जरदारी ये सब आएंगे क्या और नून लीग की तारीफ़ें करेंगे? या पीपल्स पार्टी के जलसे में नून लीग के लोग जाएंगे, मरियम सफदर ये सब जाके वहाँ क्या तारीफ़ें करेंगे उनकी? नहीं, एक दूसरे को गालियाँ देंगे, एक दूसरे के पिछले करप्शन को की फाइलें फिर दोबारा खुलना शुरू हो जाएंगी, फिर एक दूसरे को बुरा भला कहा जाएगा, फिर उनके दौर में जो करप्शन हुई इसके बारे में जिक्र किया जाएगा। तो ये तो सारी चीज़ सब लोग वाकिफ़ हैं इस बात से। तो फिर इनके पीछे चलने वाले कौन लोग हैं आखिर? हमने इन सब को भुगता है, भुगतने का लफ्ज़ ज़्यादा अच्छा है, इन सब को भुगता है। इन सब की हुकूमतें आ चुकी हैं। सब आज जो पीपल्स पार्टी जो अपने आप को कहती है भुट्टो ज़िंदा है, अंदरून सिंध जाकर हालत देख लें कि भुट्टो कहाँ पर ज़िंदा है, क्या हालात हैं लोगों के, किस तरह से लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज भी वही 100 साल पहले की तरह से लोग रह रहे हैं वहाँ पर। तो इसी तरह पंजाब के छोटे इलाके, वहाँ पर भी यही, हर जगह यही आलम है। अब इमरान खान ने जो कुछ भी किया सही करने की कोशिश की। अब ये बदकिस्मती है कि ये ऐसे दौर में कोरोना का ये वायरस आ गया, लेकिन ये बदकिस्मती हुकूमत की नहीं, इमरान खान की नहीं, ये बदकिस्मती कौम की है। कोरोना वायरस का असर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक पर पड़ा है, और 5 जगह हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। पाकिस्तान फिर भी बेहतर नज़र आ रहा है, और इसका असर तो हुआ है, लेकिन बदकिस्मती इसलिए कौम की है कि कौम को एक अच्छा रहनुमा मिला था, एक अच्छी पार्टी मिली थी और अच्छे तरीके से काम शुरू किया था उन्होंने, और अचानक जो है ये वबा आ गई, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी असर पड़ा है। लोग इस बात पर भी मतलब हैरान नहीं होते कि भाई इतना कर्जा जो है नवाज शरीफ हुकूमत में और जरदारी की हुकूमत में वो कहाँ गया। लोग इस बात पर भी हैरान नहीं होते कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी जायदादें इन लोगों ने बनाई हैं वो कहाँ से आई। बहरहाल ये इन तमाम बातों से कौम पूरी तरह से वाकिफ़ है। मेरा कहने का मकसद ये है कि पीडीएम बनाने का मतलब ये है कि एक पीटीआई के मुकाबले में एक अलहदा ना पीपल्स पार्टी मुकाबला कर सकती है, ना अलहदा नून लीग मुकाबला कर सकती है, और ना ही कोई दूसरी पार्टी। इसी तरह से भुट्टो के दौर में हुआ था कि जो पार्टियां मुकाबला नहीं कर सकती थी पीपल्स पार्टी का, वो सब इकट्ठा होकर उन्होंने मतलब तहरीक चलाई थी हटाने के लिए। अगर पीपल्स पार्टी समझती है कि अवाम उसके साथ हैं, वो एक बहुत बड़ी क़ुव्वत है पाकिस्तान में, तो वो अलहदा मतलब उनको पीडीएम में शामिल होने की क्या ज़रूरत है। इसी तरह नून लीग अगर ये समझती है कि वो मुकाबला कर सकती है पीटीआई का, तो सारी पार्टियां मिलकर एक पार्टी का मुकाबला कर रही है। फिर बात वहीं पर आती है कि लोग कहते हैं कि जी वो तो फौज की हुकूमत है। मतलब किसी एक बात पर कोई कायम नहीं हो रहा है कि फौज की हुकूमत है या पीटीआई की हुकूमत है। तो सबसे पहले तो फैसला इस बात का होना चाहिए। उसके बाद हम लोग जो है, ये हमारे सुहेल इम्तिसाल सिद्दीकी भाई अभी कमेंट्स दे रहे हैं, अच्छे कमेंट्स हैं, लेकिन
इनके कहने के मुताबिक कि भाई हम जो जो कुछ बोलते हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं वो तो चिड़िया के मुंह में कंकर है, हम कंकर मार रहे हैं जिसका कोई असर नहीं हो रहा है। सुहेल भाई के कमेंट, मैं बहुत कदर करता हूँ सुहेल भाई की, बहुत अच्छे, ईमानदार और बहुत साफ़ सुथरे सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, मैं इनकी बहुत कदर करता हूँ। लेकिन मैं हैरान हूँ इनके कमेंट्स पे कि मुझे इनके कमेंट समझ नहीं आ रहा है कि क्योंकि एक तो होती है दिल शिकनी करना, और एक होती है मतलब आदमी के मतलब उसके जज्बात का, उसके ख़यालात का ख़्याल करना और उसको ही इसकी हिम्मत अफ़ज़ाई करना। एक तो हौसला शिकनी होती है, एक हौसला अफ़ज़ाई होती है। पता नहीं सुहेल भाई हौसला शिकनी क्यों कर रहे हैं कि जी आपके कहने से कुछ नहीं होगा, आपके तो एक ज़रा से अल्फाज में क्या होता है और ये होता है। भाई हर जगह हर आदमी, जो इस वक्त पीडीएम के जलसे में जो लोग जा रहे हैं, हर आदमी अपनी जगह एक है जिसकी आवाज़ की कोई अहमियत नहीं। लेकिन जब ये सारी आवाज़ें एक साथ मिल जाती हैं तो अहमियत जब होती है, असर जब होता है। हर आदमी अपनी अपनी जगह अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा है। मैं अपनी जगह अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे कहने से हुकूमतें बदल जाएंगी या मेरे कहने से पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा कोई असर आ जाएगा, नहीं। मुझे मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरा ज़मीर मुतमईन होगा कि मैं कुछ कर नहीं सका तो, लेकिन मैं बोल तो सका हूँ ना, मैं कुछ कह तो सका हूँ ना, मैं कुछ लिख तो सका हूँ ना। तो इस यही सारा सोच के मैं मतलब करता हूँ ये सब। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर आवाम पीडीएम के साथ है तो किसके साथ है, किसकी हुकूमत चाहते हैं, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, या मौलाना फजल रहमान की? क्योंकि ये फैसला तो होना है ना। ये अगर जब जब अगर इनकी तहरीक, अगर खुदा ना खास्ता कामयाब हो गई और पीटीआई हट गई, तो उसके बाद क्या ये इसी तरह इत्तेहाद कायम रहेगा? और कौन मतलब ये चाहेगा कि, क्या मरियम सफदर ये चाहेगी कि आसिफा भुट्टो या बिलावल जो है वो वज़ीर आज़म बने? क्या बिलावल या आसिफा भुट्टो ये चाहेंगे कि मरियम सफदर वज़ीर आज़म बने? नहीं। उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उनको फिर तहरीक चलाना पड़ेगी, नून लीग के खिलाफ तहरीक चलाना पड़ेगी, नून लीग को पीपल्स पार्टी के। तो ये कौम कब तक मतलब इनके पीछे चलती रहेगी, कब तक इनके ड्रामेबाजियों पर जो है बाहर निकलती रहेगी? कौम को भी एक फैसला करना चाहिए कि भाई वो क्या चाहती है, उसके बाद ही मतलब पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। 73 साल हो चुके हैं, 74 साल बल्कि, अभी तक पाकिस्तान अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। दुनिया के कई ममालिक पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जो कुछ पाकिस्तान के साथ आज़ाद हुए थे, जो पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुए थे, वो न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तरक्की याफ्ता कौमों की सट में खड़े हुए हैं, और हम अभी तक वहीं पर हैं। हमें अफसोस होता है, हम दूसरे मुल्क में रहते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है यहाँ रहने में, सब कुछ। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क का भी नाम रोशन हो, हम भी फ़ख्र से कह सकें कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। क्योंकि लोग यहाँ पर पूछते हैं, जो नहीं जानते, जो अमेरिकन नहीं जानते, वो पूछते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, तो हम कहते हैं आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। वो फ़ौरन जो है सियासत पर आ जाते हैं, वो फ़ौरन भुट्टो की बात करने लगते हैं, वो फ़ौरन इमरान खान की बात करने लगते हैं। तो कम अज़ कम हमारे पास कुछ कुछ तो ऐसा हो कि हम ये कह सकें, हम फ़ख्र से कह सकें कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। बहरहाल ये अपनी अपनी सोच है, और जहाँ जो मेरे जज्बात हैं, जो मेरी सोच है, जो मेरे अल्फाज हैं, वो मैं बयान करता रहूँगा, कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और मैं अपना फ़र्ज़ अदा करता रहूँगा, बस। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।